ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی اور اس کا صلہ بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت، کوئی ایک نعمت کو لے لیں، اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک آسان سی مثال، ہم میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا، کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، کچھ کھا چکے، کچھ لوگوں کو کھانا ہے۔ ایک لقمہ اٹھائیے، لقمہ کسے کہتے ہیں؟ روٹی، سبزی ہو، دال ہو یا سالن ہو، آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھگویا اور وہ بن گیا ایک لقمہ، اور وہ لقمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ابھی منہ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل اور چمٹی ہوئی ہے اس کا اندازہ کریں۔ آئیے کوئی مفکر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھال نکالے گا، لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لقمے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو لقمہ بنا ہے یہ گیہوں سے بنا ہے۔ گیہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے؟ لقمہ بننے سے پہلے یہ لقمہ روٹی تھا، روٹی کو کسی کے ہاتھ نے بیل کر پکایا، وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اب شمار کرتے جائیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیسے نہیں کر سکتے ذرا اس کا اندازہ کریں۔ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے جب یہ لقمہ نہیں تھا، صرف روٹی تھا، کسی ٹوکری میں، کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا، کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو بنایا کسی ہاتھ نے، وہ ہاتھ اللہ کے دیے سے۔ دوسری بات، روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا، آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں، تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں۔ پانی برسایا کس نے؟ اب بولتے جائیں، اللہ نے۔ اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں، یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گیہوں تھا، یہ گیہوں کیسے آیا؟ یہ گیہوں کبھی بیج تھا، اس بیج کو پھر کسی ہاتھ نے زمین میں ڈالا، سر کا پسینہ پیر سے آیا، اس وجود کسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کام سے کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر وہ بیج زمین میں گیا، اگر اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گیہوں بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا، اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی، وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو پانی پہنچا وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ تو ظاہری اسباب تھے، لیکن پھر زمین چیرنے کی طاقت اس ننھے سے وجود کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی صبح کے وقت تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نثار کر دیا۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد شبنم کے ان
शबनमी कतरे, जो रात के वक्त शबे नम शबनम उसके वजूद को नम करती रही, तो गोया कि अपनी किरणों के तौलिए से उसका चेहरा किसने साफ किया और उन किरणों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसके बाद चांद की दूध या रोशनी उसको झूला झुलाती रही, ये वजूद किसने अता किया चांद को? मेरे अल्लाह ने। उसके बाद जब वो अपने सर को उठा करके जवानी की दहलीज पर पहुंचा, तो उसके अंदर जो है वो सुम्बुले किसने पैदा की? अल्लाह ने। और एक बीज से कई दाने पैदा हुए, और जब वो दाने पक गए उसको पकाया किसने? अल्लाह ने। उसमें बारिश का वजूद है, उसमें आसमान का वजूद है, उसमें जमीन की मुशक्कतें हैं, जमीन की मेहनतें हैं। इस तरीके से कोया के पूरा निजाम लगा हुआ है। कभी शबनम खिदमत कर रही है, कभी सूरज खिदमत कर रहा है, कभी चांद खिदमत कर रहा है, कभी सितारे खिदमत कर रहे हैं, कभी आसमान खिदमत कर रहा है, कभी जमीन खिदमत कर रही है। तब कहीं जाकर के गेहूं पैदा होता है, और उसके बाद जब गेहूं पैदा हुआ, अगर उसको घुन खा लेते तो बताओ हमारे पास आ सकता था? नहीं आ सकता था। उसको घुन से बचाया किसने? अल्लाह ने। उसके बाद मार्केट में लाने वाले हाथ अल्लाह ने पैदा किए। उसके बाद मार्केट में लाया गया, तो जेब में खरीदने के लिए पैसे दिए किसने? अल्लाह ने। और उसके बाद जब खरीद करके लाए तो अल्लाह अकबर, फिर उसको पिसाया गया, और उसके बाद गोया के एक लुकमा हमारे हाथ में बनकर आया, और कितनी नेमतें उसके पीछे पोशीदा हैं। इसीलिए बंदा अब लुकमा लेकर के बैठा है। अगर मेरा अल्लाह उस हाथ को ही जो है वो नाकाम कर दे, तो क्या वो हाथ मुंह तक के पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। चले पहुंच गया, चबाने की ताकत छीन ले, तो क्या वो पेट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हाथ को ताकत दी, मुंह तक पहुंचाए, मुंह में दांत पैदा किए ताकि वो चबाए, जबान के अंदर ताकत पैदा की, वो लज्जत महसूस करे, और उसके बाद चबा चबा कर जब हलक के नीचे गुजार दे, और जब हलक के नीचे लुकमा चला जाए, इंसान का इख्तियार खत्म हो जाए। अगर वो खाना अल्लाह हजम न होने दे, तो बताओ पेट में कितनी तकलीफ होगी, कितनी मुशक्कतें होगी। लेकिन अल्लाह ने ऐसे लुआब पैदा किए जिससे वो खाना हजम होता है। अल्लाह अकबर। फिर पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद आंतों में जाकर के कभी वो काम का होता है, कभी नाकाम होता है। काम की चीज पेट में रह जाती है, और जो नाकाम होती है, नाकाम की नहीं होती, फुजले की शक्ल में उसको बाहर कर दिया जाता है। बोलिए ये एक लुकमा है, लेकिन अल्लाह का निजाम कुदरत कैसे काम कर रहा है। कभी हमने गौर किया? अल्लाह की नेमतें ये है। ये तो एक लुकमे की बात हुई, एक लुकमे की बात हुई। अब बताएं, कपड़े हैं, जिस्म है, बाल है, खाल है, नाक है, जबान है, आंख है, पैर है, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, जमीन है, कारोबार है, जायदाद है, माल है, दौलत है, कुव्वत है, जो वो इज्जत है, वकार है, इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, इबादत की तौफीक है। सारी नेमतें हैं, और इससे बढ़कर दामने मुस्तफा हाथ में। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न व इंस, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे? जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे और सहाबा खामोशी से सुन रहे थे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत मुकम्मल की, आका ने फरमाया, कैसे हो तुम लोग? तुमसे बेहतर तो जिन थे इस मामले में कि जब मैंने उनके सामने सूरह रहमान की तिलावत की, तो जब मैं पहुंचता फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, और मैं जब ये कहता कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तो वो लोग जवाब देते, ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, और हम तेरी हर नेमत पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। इसलिए कि ये तकफुरून जो है, हालांकि इसका लुग़वी माना होगा कि शुक्र करो और कुफ्र न करो। यहाँ पर हमारे मुफस्सिरीन ने इसको ये बताया, चूंकि शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है, तो यहाँ कुफ्र जो है वो नाशुक्री के माना में आया है। यहाँ कुफ्र उस माना में नहीं आया
जिसको हम उर्फ आम में किसी को काफिर कहते हैं। तो या अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र बजा लाओ, मेरा एहसान मानो और नाशुक्री मत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। और याद रखें, अल्लाह की नेमतों पर इंसान जितना शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको नेमतें उतनी ज्यादा अता करता है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा एहसान मानोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा अता करूंगा। यानी अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मजीद उसको इज्जत मिले, तो वो उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको दौलत दी, वो मजीद उसको दौलत मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको ईमान दिया, ईमान को और मजबूती मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत दी, अगर वो चाहता है कि ये नेमत जाय ना हो, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हदीस पाक में आया है सब्र निस्फ ईमान है, शुक्र निस्फ ईमान है, और यकीन पूरा पूरा ईमान है, मुकम्मल ईमान है। हदीस पाक में आया है नेमतें भागने के मामले में, जाने के मामले में, शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी एक ऊंट जो शरीर होता है, चूंकि हमारे यहां पर ऊंट आमतौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन अरब में ऊंट की कसरत थी, ऊंटों की। आपको ऊंट के शरीर होने का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि हम कुर्बानी के मौके पे जो जानवर खरीद के लाते हैं, तो अगर कोई शरीर जानवर हम ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले को वो कैसे सर पे उठा लेता है। तो ये जो बैल और बछड़े वगैरह जो हैं, ये कभी कभी बहक कर जितने शरीर होते हैं उससे कहीं ज्यादा अगर कोई ऊंट शरीर हो जाए तो वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है, लोगों के सरों पे हमला करता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि नेमतें भागने के और जाने के मामले में शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट रस्सी तोड़ के भागा, कितने भी लोग उसके पीछे दौड़े, जल्दी से वो हाथ में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही बिला तमसील अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, तो वो नेमतें भी तुम्हारे पास से ऐसी भागती है, बल्कि उससे तेज। शरीर ऊंट जितना तेज भागता है, आपके पास से रस्सी तोड़कर नेमतें उतनी तेज, उससे ज्यादा तेज भागती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।